A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. So without creating any delay, let's we start today's topic. You know very well in the last few videos of accountancy, we discussed the chapter number 7, accounting for share capital, issue and forfeiture. In this chapter, we already discussed the issue of share at par. Number 2, the issue of share at premium. Number 3, preparation of bank account. Number 4, preparation of cash book. As well as we discussed the entries related to the call scenario when any shareholder failed the amount of calls. So in this situation, what entries should be passed? We already discussed. As well as we discussed the concept of calls in advance in the last video. We can see that what entry should be passed at the time of calls in advance when any shareholder paid the advance money before the due. Suppose any shareholder paid the allotment money with application, paid the first call money with allotment, paid the final call money with first call. So such kind of situation will be known as the calls in advance. And in this situation, what entry should be passed? It will be already discussed in the last video. So now we will move to the next topic of this chapter, that is issue of share other than cash consideration. So today's topic is issue of share other than cash consideration. You know very well, sometimes share companies issued its share not for cash. It is issued for the arranging some kind of the assets and bearing some kind of liabilities, as well as purchasing the purchases another business. So this situation is called issue of share other than cash consideration. So in short and simple word, we can say issue of share for other than cash consideration says that when a company issued its share for not arranging the cash, it by the help of this such kind of issue, company arranges a such kind of the assets, arranges of various kind of businesses, as well as paid the different types of liability. So now let's we start the today's topic. So the next topic is issue of share for a consideration other than cash. What is the summary of this topic? That is, sometimes share are issued for a consideration other than cash. Generally share for consideration other than cash in the following circumstances. Sometimes यानी कभी कभी कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है कैश के अलावा, और ये कंसिडरेशन कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए होते हैं. वो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने हैं. द फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस दैट इज इशू ऑफ शेयर फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स. दैट इज इशू ऑफ शेयर for a consideration other than cash. ओके इसमें बेसिकली कंपनी करती क्या है, शेयर इशू करती है, लेकिन उसके बदले उसे कैश नहीं मिलता है. उसके कुछ स्टेप्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं. द फर्स्ट केस व्हेन कंपनी इशूड इट शेयर अदर देन कैश, द फर्स्ट वन इज इशू ऑफ शेयर for purchase of assets. For purchase of assets यानी कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने के बदले उसे क्या मिलता है, एसेट्स मिलता है. When a company purchases an assets and payment is not made in cash, if can issue full paid up share to the vendor. For this purpose, the following entries is made.
यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने के बाद कंपनी जब कोई एसेट्स परचेस करती है, ठीक है, सपोज कंपनी ने कोई एसेट्स परचेस किया और उसका पेमेंट वो कैश में नहीं करती, ओके, कैश में पेमेंट ना करके बल्कि वेंडर को कैश के बदले शेयर दे दे, वेंडर को क्या दे दे, कैश के बदले शेयर दे दे, तो सच सिचुएशन इज नोन एज इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। सो इस सिचुएशन में होता क्या है, यू कैन सी दैट इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करेगी, एसेट्स परचेस करेगी, यानी द नंबर वन एंट्री विल बी रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स परचेस करेगी, एसेट्स परचेस करने की एंट्री होती है, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी, द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मीन्स द सेलर who sell the assets. Firstly the company purchase the assets and second entry share issue करने की, issue of share, and you know very well इसमें जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो शेयर दो तरह से इशू कर सकती है, पार पे इशू कर सकती है और प्रीमियम पे इशू कर सकती है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, इट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो अगर एट पार पे अगर शेयर इशू करती है तो उसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर पार पे शेयर इशू करती है यानी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू करती है तो ये एंट्री होगी। इज दैट क्लियर? और क्या होगा कि कंपनी, दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कंपनी शेयर किस पे इशू करे, प्रीमियम पे। तो अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होगा एट प्रीमियम, ठीक है, तो सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। Okay, so you can see that the whole summary of the issue of share for a consideration other than cash. Okay, yani when a company issued its share not for the cash, for the purchasing of the assets, so in this situation first of all we pass the journal entries, and in the journal entries the first of all we purchase the assets, you know, सबसे पहले हम assets purchase करेंगे, and this when we purchase the any assets, so the entry will be assets account debit to vendor. Okay, the entry will be passed on the purchase of the asset, that is assets account debit to vendor, and the second entry will be related to the issue of share, यानी दूसरी entry क्या होगी, share issue करने से related. So the entry will be when share are issued at par, when a company issued its share at par, so in this situation company pass the journal entries vendor account debit to share capital, and when company issued its share at premium, so the entry will be vendor account debit to share capital to security premium. So please note down in your copy. बेसिकली देखिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और इजी लगेगा। जब भी हम कोई शेयर इशू करते हैं एसेट्स को खरीदने के लिए, तो पहले हम एसेट्स की एंट्री के पास करेंगे, फिर जो वेंडर को खरीदा है वेंडर को शेयर दूंगा ना, शेयर दो तरीके से दे सकता हूँ, पार पे दे सकता हूँ, प्रीमियम पे दे सकता हूँ। जब प्रीमियम पे दूंगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा। ओके, इट इज द फर्स्ट सिचुएशन। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड सिचुएशन कि कंपनी और कैसे शेयर इशू कर सकती है फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। So the second situation related to the issue of share for a consideration other than cash, that is a issue of share to promoters. You know very well promoters कौन होते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कंपनी उनके सर्विस के बदले उनको भी शेयर प्रोवाइड कर सकती है। So the second situation when a company issued its share for a consideration other than cash, that is a issue of share to promoter. तो when a company issued its share to the promoter, तो क्या एंट्री पास होगी? So basically the first entry, जब हम sometimes promoter are issued fully paid up
shares for a service rendered by them. In following entries, in this situation, following entries is made. The entry will be very clear. Incorporation expenses account डेबिट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. ओके, टू शेयर कैपिटल, और हो सकता है इनको भी शेयर किस पे इशू किया जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम पे. तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे. बेसिकली आपको याद रखना है, अगर पार पे इशू होगा शेयर तो सिर्फ लिखेंगे क्या, टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों वर्ड क्रेडिट होंगे, दोनों अकाउंट क्रेडिट होंगे. एंड नरेशन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फॉर फुल्ली पेड अप शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज. So it is the second situation when company issued its share for a consideration other than cash. Please note down in your copy. Now we will move to the third situation when company issued its share for cash other than cash consideration. The third situation when company issued its share for a consideration other than cash is that, तीसरा सिचुएशन है मैं आपको बताने जा रहा हूं, when company purchased another business and issue its share. यानी कंपनी क्या कर रही है, किसी का और का बिजनेस परचेस करती है, अनदर बिजनेस. ओके, इसको और थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं. अनदर बिजनेस, किसी दूसरे का बिजनेस खरीदती है एंड इशूड इट शेयर, और शेयर परचेस करती है. सो सिचुएशन में क्या होता है, बेसिकली पहली एंट्री पास होती है इन सिचुएशन में. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी बिजनेस परचेस करती है. यू नो वेरी वेल, जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है या दूसरे बिजनेस को खरीदती है तो उसके पास क्या आता है, एसेट्स, और उसकी क्या क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटी. सो द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, एज वेल एज जो वेंडर हैं जिनसे वो एसेट्स परचेस किया गया है उनका नाम. और अगर इज देयर एनी डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड, इट विल बी राइट डाउन एज या बैलेंस एज वेल एज अ गुडविल. और अगर कोई लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड कोई बैलेंस रह जाता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं. यानी गुडविल हो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, ये दोनों का दोनों बैलेंसिंग फिगर मेंटेन करता है. ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज आपने किसी दूसरे कंपनी को खरीदा या दूसरे के बिजनेस को खरीदा, कितने में, 1 लाख रुपए में. यानी आपने दूसरी कंपनी को खरीदा 1 लाख रुपए में. सपोज मेरी कंपनी का नाम आर लिमिटेड है, मैंने एस लिमिटेड को खरीदा. तो एस लिमिटेड को खरीदने में वेंडर कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए में देंगे आपको. ओके, इज दैट क्लियर? 1 लाख में देंगे, और उस बिजनेस को खरीदने से मेरे पास आ रहा है 1,50,000 रुपीज का एसेट्स, और उस बिजनेस को खरीदने से मेरे पास लायबिलिटी आ रही है कितनी, 30,000. सो अगर आप मैच कराओ तो 1,50,000 एसेट्स है और लायबिलिटी 1,30,000 रुपीज की है. सो अब आप बैलेंस करो, इधर आ रहा है 150, इधर आ रहा है 1,30,000. डिफरेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व. अगर यही बैलेंस डेबिट में आता तो किससे एडजस्ट करते, गुडविल से एडजस्ट करते. सो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों जो स्टार मेकिंग चीजें हैं वो बैलेंसिंग पे डिपेंड करेंगे. इट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है. सो ये होगी पहली एंट्री. सेकेंड एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, बिजनेस परचेस कर लिया, अब वेंडर को पेमेंट करेंगे. तो वेंडर को पेमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो हम पार पे पेमेंट करेंगे शेयर को, यानी शेयर इशू करेंगे पार पे, या तो शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे. ये मैं थोड़ा स्टार को और क्लियर कर देता हूं. स्टार मींस बैलेंस. स्टार मींस व्हाट,
बैलेंस, जो बैलेंस आएगा, और दोनों में से किसी एक की जगह बैलेंस आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी क्वेश्चन में कि डेबिट साइड भी बैलेंस आए और क्रेडिट साइड भी बैलेंस आए। तो एट पार पे अगर हम शेयर इशू करेंगे तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। Okay, so you can see that when any company issued its share for purchasing the another business, यानी किसी दूसरे का बिजनेस खरीदने के लिए अगर शेयर इशू करती है तो उस सिचुएशन में दो एंट्री पास होती है। पहली एंट्री किससे रिलेट करती है? द फर्स्ट एंट्री इज रिलेटेड टू द परचेज ऑफ द बिजनेस इन विच द एसेट्स अकाउंट डेबिट, liabilities account debit, credit, वेंडर अकाउंट इज क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेंडर के सामने कौन सी वैल्यू लिखेंगे? जितने में उसका बिजनेस खरीद रहे हैं। जनरली हम जितने पे बिजनेस खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन? जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो एक प्राइस डिसाइड होता है कि हम इतने में खरीदेंगे तुम्हारा बिजनेस, और बिजनेस खरीदने के बाद मेरे पास क्या आएगा? मैं तो उसको पैसा दे दूंगा, या इतना रुपए, जितने रुपए में बात हुई है मैं उसको उतना मनी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसके बिजनेस की एसेट्स मिलेगी, उस बिजनेस की लायबिलिटीज मिलेगी। और वो एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए या तो डेबिट में गुडविल आएगा या तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आएगा। और वेंडर को यहाँ कैश में पेमेंट तो करना नहीं है, यानी उसको जो परचेस कंसिडरेशन फिक्स हुआ है हमारे और उसके बीच में, तो उसको तो हमें क्या पे करना है? शेयर देना है। तो शेयर या तो पार पे दे सकते हैं या तो प्रीमियम में दे सकते हैं। सो दे आर बेसिकली टू वे व्हेन अ कंपनी इशूड इट्स शेयर, either by at par or at premium. So please note down in a copy, and now we will move to the practical question. And before the coming to the practical question, पहले मैं आपको बता दूं the situation when company issue of share for a consideration other than cash, यानी वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां कंपनी अपना शेयर इशू करती है फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश में। जिसमें फर्स्ट सिचुएशन थी issue of share for purchase any assets, number 2 issue of share to promoters, and number 3 issue of share for purchasing another business. So now we will move to the practical question. So let's start and be ready. So you can see the question number, illustration number 9 on your screen. That is, past journal entries in the following circumstances. Condition number A, 10,000 share of rupees 10 each issued to the promoter at a premium of 10% for the service rendered by them. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपए के इशू किए हैं प्रमोटर को 10% प्रीमियम पे। And number 2, a running business it's purchased by the company for 4,50,000 and issued 10 rupees fully paid up share in payment. जो सेकेंड सिचुएशन है ना बी, जिसमें एक रनिंग बिजनेस खरीदा है, इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, यानी ये क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है तो उसकी एसेट्स क्या आ रही है, लायबिलिटी क्या है, तो उसमें वो इंट्रीज नहीं होगी कि गुडविल बन रहा है कि कैपिटल रिजर्व बन रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर सी, furniture worth rupees 10,000 purchased by this company from X company limited, and in payment 10 equity share of equal amount issued. So you can see that in the all question they are basically three situation जब कंपनी इशू कर रही है शेयर for other than cash consideration, for consideration other than cash, ये भी कह सकते हो। एक शेयर इशू हो रहा है प्रोमोटर्स को, एक शेयर इशू हो रहा है बिजनेस को खरीदने के लिए, और एक शेयर इशू हो रहा है क्या खरीदने के लिए? फर्नीचर खरीदने के लिए। सो नाउ इस सिचुएशन में क्या एंट्री पास होगी? लेट्स वी डिस्कस इट। सो जो पहली सिचुएशन है जहां पे प्रमोटर को शेयर इशू हो रहा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? दैट इज 9।
ओके। एंड कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर ए ये कह रही है कि मैंने शेयर इशू किया है प्रमोटर को, तो जब प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू शेयर कैपिटल। यू नो क्या शेयर पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है, आप देख लो 10% प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे तो गलत नहीं है। हाउ मेनी शेयर इशूड टू द प्रमोटर, 10,000 शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू 10। 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो द अमाउंट विल बी 1 लाख। एंड प्रीमियम कितना बोल रहा है, 10%, तो 10% किसका, 1 लाख का 10%। ओके, so this is 10,000, sorry, yes, total value is 1,10,000, so total incorporation expense is 1,10,000, इसमें से 1 लाख रुपए का शेयर गया और 10,000 रुपीज प्रीमियम का हो गया, ये एंट्री हो गई। आप जब एंट्री पास करोगे कॉपीज में तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट बनाओगे। नंबर सेकेंड, a running business is purchased by the company for 4,50,000 and issued 10 fully paid up share in payment, यानी आप एसेट खरीद रहे हो, एसेट्स सॉरी बिजनेस खरीद रहे हो, तो बिजनेस का जो वेंडर है, आप, मैंने कहा था ना पहली एंट्री पास नहीं करनी है, वेंडर जब आपके पास है, वेंडर का नाम तो नहीं दिया है इसमें, नहीं दिया है, सो वेंडर अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए का बिजनेस आप खरीद रहे हो, 4,50,000 रुपीज का, ठीक। टू शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, कितने का शेयर इशू कर रहे हो, एक शेयर कितने का इशू कर रहे हो, 10 रुपीज का, सो 4,50,000 का गया, तो आप कितने शेयर वेंडर को इशू किए, 45,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। ये आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा कि बैंक परचेज रनिंग बिजनेस एंड इशू 45,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, इसलिए उसने बोला है कि 4,50,000 रुपीज का बिजनेस है जिसको आपने 10 रुपए के शेयर से खरीद लिया है, तो कंपनी को कितने शेयर इशू किए होंगे, 45,000। अब आते हैं कंडीशन नंबर सी पे, इसमें क्या करा है, फर्नीचर वॉट 10,000 परचेज बाय द कंपनी फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड एंड इन पेमेंट 10 इक्विटी शेयर ऑफ इक्वल अमाउंट इशूड, यानी कि इक्वल अमाउंट पे कह रहा है, तो यानी पार पे ही इशू है, तो पहले मैंने क्या इशू किया, परचेज किया फर्नीचर, सो द फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, किससे खरीद रहा है, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम एक्स कंपनी, वेंडर मतलब सेलर, तो एक्स कंपनी लिमिटेड का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कितने का फर्नीचर खरीद रहा हूं, कह रहा हूं 10,000 रुपीज का फर्नीचर है, और फिर उसके बाद उसको मैं शेयर दे रहा हूं, ठीक, शेयर कितने का दे रहा हूं, एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जाहिर सी बात है 10,000 का है तो 10,000 का ही शेयर दूंगा, ये तो कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो यू कैन सी दैट कि मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, फिर 10,000 का उसको शेयर दे दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कितने शेयर दिए इसके लिए, सो फॉर द परचेजिंग ऑफ द फर्नीचर वी इशूड द शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का मैंने दिया है, और कैसा शेयर दिया, इक्विटी लिखा हुआ है, देखिए वहां पे एकदम क्लियरली लिखा है इक्विटी शेयर, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। छोटी छोटी बातें आपके मार्क्स गेन करा सकती हैं, डिडक्ट करा सकती हैं, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कितने शेयर इशू किए, 1,000 शेयर, और एक शेयर कितने का इशू किया, 10 पे। ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है और कितने का पेमेंट हमें करना था, 10,000 का, सो हमने कितना शेयर इशू किया होगा, 1,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। सो मैं इसको जूम कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, so you can see that in this question, the illustration number 9, firstly we pass the entries related to the promotion expenses, पहले हमने एंट्री पास की
प्रमोशनल एक्सपेंस के लिए, जैसे प्रमोटर्स को मैंने इशू किया, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंटेबल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिकॉज in this situation we issued the share at premium. Thereafter we issued the share to the vendor for purchasing a running business, उसके लिए 4,50,000 दिया. Thereafter we purchase a furniture of rupees 10,000 from X company limited, उसकी जर्नल एंट्री पास की. And thereafter we issued the equity share, हमने कौन सा शेयर इशू किया है? इक्विटी शेयर टू द X company limited in exchange of furniture. So that's all. You can see that what journal entries should be passed when company issued its share for consideration other than cash. So now at the end of today's video, now we will talk about the small topic which are already very important for the accounting for share capital. The topic is under subscription. Basically, what is under subscription? Sometimes application received for share are less than the amount for which application are invited by the company. Such an issue is said to be undersubscribed. In such a case, all share applied and or allotted to the applicants and entries are made accordingly. यानी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे क्या होता है, कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे कम शेयर सब्सक्राइब होता है, यानी पब्लिक उससे कम शेयर परचेस करती है. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. बट इतना भी अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुल ऑफ ना कर पाए. सो इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि एंट्रीज पास करते समय आपको क्या करना है. एंट्रीज पास करने के लिए आपको वही करना है जैसा आप करते आए. सो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझाना की कोशिश करता हूँ. व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बीच में थोड़ा सा गैप है. सो इस गैप को विदाउट क्रिएटिंग एनी डिले मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं. सपोज कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किया. कंपनी का एथराइज शेयर जो था, एथराइज मतलब जो मैक्सिमम शेयर है वो था, दैट इज 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 each. सपोज कंपनी ने क्या किया, उसमें से कुछ शेयर इशू कर दिया पब्लिक को. पब्लिक को कितना शेयर इशू किया? सपोज कंपनी ने शेयर इशू किया 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 each. इशू कर दिया पब्लिक को खरीदने के लिए. पब्लिक ने क्या किया, अब जरूरी नहीं है कि जितना हमने इशूड किया है वो सब का सब पब्लिक खरीद ले, ऐसा तो नहीं हो सकता. सो इशूड शेयर कैपिटल हो गया. पब्लिक ने क्या किया, उसमें से सब्सक्राइब किया कुछ शेयर. कितना सब्सक्राइब किया? सपोज कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7,500 शेयर एट द रेट ऑफ 100 एंड दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. ओके, व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? When the subscribed share capital is lower than the issued share capital, it is known as the under subscription. But minimum subscription भी अलग है. You know very well minimum subscription कितना होना चाहिए? जितना शेयर आप इशू करते हो उसका 90% आपको रिसीव हो जाना चाहिए. So 90% कितना रिसीव हो जाना चाहिए? 7,200 शेयर एट द रेट ऑफ 100 each. यानी 7,200 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए. दिस इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सो यू कैन सी दैट अंडर सब्सक्रिप्शन में आप अलॉटमेंट तभी कर पाएंगे, आगे तभी बढ़ पाएंगे, तभी लोगों को शेयर अलॉट कर पाएंगे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल डिमांड कर सकेंगे जब आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव कर लो. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट कि कंपनी ने इशू किया 8,000, सब्सक्राइब कितना आ गया? 7,500 शेयर, और उसका मिनिमम कितना बनना चाहिए था? 7,200. तो ज्यादा है, ठीक है. यहीं अगर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 7,000 होता, 6,000 होता, तो क्या कंपनी शेयर आगे अलॉट कर पाती? कॉल्स मांग सकती थी? नहीं कर सकती थी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013
कंपनी जितना शेयर इशू करती है उसके 30 डेज के अंदर कंपनी को कम से कम उसका 90% का एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए, यानी 90% शेयर उसके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। सो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? व्हेन द इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज लेस देन द इशूड शेयर कैपिटल बट एक्सेस या ग्रेटर देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। वैसे अंडर सब्सक्रिप्शन तो हर समय रहेगा, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे गया तो शेयर आगे अलॉट नहीं कर सकते, आगे काम नहीं होगा, आपको सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। सो आई होप आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टुडे फाइनली वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम लोगों ने डिस्कस किया जिसके 3 केसेस थे। द फर्स्ट वन व्हेन इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, and number 3 issue of share for purchasing any other businesses, as well as we discussed the small topic and very important topic that is under subscription and minimum subscription. So I hope today we cleared all the topics very easily. So आज के लिए इतना ही। Thank you, thanks a lot.